I can see one viewer, two. So we still have time. We still have 2 minutes to start off with our session for today for PEFI. I'm really excited. Hello, sir. Hello, Raviji. I'm still waiting for a few people. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Ayushi. आपको मेरी आवाज़ आ रही है अच्छे से? Can you hear me well? कोई मुझे बताएगा? हर्षित जी, हेलो. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून अश्विनी जी, सुमन जी, सुजीत, हर्षित यादव. गुड आफ्टरनून. कोई मुझे प्लीज़ बताएगा मेरी आवाज़ आ रही है अच्छे से? Am I very audible? मेरी लाइट्स ठीक है? Perfect. Good to go. I'm still waiting for a few people. I will tell you everything about myself. शांति कुमार जी, मैं सब कुछ बताऊंगी आपको. मैं बिल्कुल आपको अपना पूरा I'll give you my details. I'll tell you how am I connected to PEFI. I'll tell you everything. I'm just waiting for a few people to add up. So the voice is audible, है ना? I hope it's very clear. Yes, good. Thank you for a green signal. Yes, it's clearly audible. Thank you, Dr. Aruna ji. Thank you, ma'am. Yes, I'm going to continue just a few more moments. I'm just waiting for another 30-40 seconds so that okay, so you want me to be a bit louder? Okay. Am I okay now? रौनक जैन जी, एक बारी फिर दोबारा से मुझे थोड़ा सा बताएंगे. आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैं और लाउड होने की कोशिश करूँगी. यस, आई विल. एवरीथिंग्स ओके. ओके, सो अनदर 5 seconds, exact 1 o'clock, I'm going to be there. And I think it's almost 1 now. One more light. Yes. Is it okay now? Little bit low. Share in English, please. Yes, I will be saying that in English, but मुझे थोड़ा सा I have got few people who told me कि English में and हिंदी में converse कीजिए. I have no problem in English, Hindi, and whatever. However you say, I'm comfortable anyways. Okay. Thank you, Ji. Ronak Ji. I'm going to start off with my lecture. Just to introduce myself, I am Ramandeep Kaur and I'm a sports physiotherapist, and I did my graduation from England. And after practicing in England, I came back to India because मुझे एक passion था कि मैं अपने लोगों के साथ काम करूँगी and अपनी ही country में करूँगी. I have a few clinics by the name of IFI, and I'm the director. I've got a virtual clinic. I've got a team of about 200 to 250 physios working under me, and जो staff है, they look for all the visits, सारी home visits, and we're looking all over North India. We've got few people working for us in different countries as well, but more often we look for North India. And I'm also a philanthropist. थोड़ा सा social work करते हैं, थोड़ा try करते हैं कि करें. And I work for disabled people. I've got about 40 children, the orphanage, जिसमें हमने 40 बच्चों का किया हुआ है इंतज़ाम. So we have about 40 children there, and उनका थोड़ा ध्यान रखते हैं, try करते हैं जितना हो सके. We organize free camps, and we've been doing that for last 5 years. I have also worked with National Wheelchair Cricket India. It is an international team. You can go online and see for them as well. And PEFI के बारे में तो मैं क्या ही बताऊँ, सबको पता है. It is my family. PEFI is everything to me. मैं डॉक्टर पीयूष जैन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी. I'm very thankful to him, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है. And he is like a mentor to me. Dr. Sharad Kumar, I'm very thankful to you, sir.
Tarun sir, Amrita ma'am, Rajan Pandey ji, Manoj sir, sorry if I'm missing anybody. सारे मेरे साथ बहुत अच्छे से हम लोग ने वर्क किया है एंड आई एम सो थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू एंड पेफी मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी फिट इंडिया मूवमेंट के लिए जो हमारे गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट्स हुए हैं सब चीज़ों के लिए आई एम सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ पेफी एंड वी एज अ पेफी हैव अबाउट मोर देन 25,000 मेंबर्स एंड इट्स वर्किंग रियली वेल नेशनली मतलब जहाँ बोलो पेफी इज़ पेफी एवरीवेयर सो हैट्स ऑफ टू पेफी आई मीन इट्स डूइंग अ वंडरफुल वर्क आज का दिन थोड़ा सा स्पेशल है 12th में मे बी मैनी ऑफ यू डोंट नो अबाउट इट बट टुडे इज़ द क्रॉनिक फैटीग सिंड्रोम अवेयरनेस डे सो जस्ट टू लेट यू नो थोड़ा सा ब्रीफ अबाउट 12th में because being a doctor and because patients देखते हैं every day so एक awareness के लिए ज़रूर हम कुछ ना कुछ करना चाहेंगे it is a muscle pain syndrome with tenderness and fatigue are the common symptoms it is इसमें pain होता है tenderness भी होती है और weakness body में आ जाती है it is more common in females hoping it is not anywhere in the world and I don't want anybody to have it but still if you have some symptoms you should just go for a checkup it is also called fibromyalgia just go for it was just a vague introduction of today so just to come over for my topic now I'm going to talk about preventions of sports injuries so preventions of sports injuries for the first thing the fact that I'm going to tell you about sports injuries is 3.5 million players worldwide do not come back after a sports injury. वो खेलते हैं, play करते हैं, sports injury होती है, then they don't come back. Why? One thing, awareness. They don't have any awareness about sports injuries. Sports injuries ठीक हो जाती हैं. This is very normal. होती हैं, ठीक होती हैं. इंजरी तो होएगी अगर खेलोगे तो इंजरी होएगी अगर नहीं खेलोगे तो इंजरी भी नहीं होएगी और यू डोंट नो इंजरी कभी भी हो सकती है वैसे तो घर बैठे बैठे हो जाती है वॉशरूम जाते हैं स्लिप हो जाता है सो व्हाई डोंट यू टेक अ चांस इफ़ यू आर अ गुड प्लेयर गो फॉर इट हमने एक वो किया था सेशन लिया था राजीव गांधी स्टेडियम रोहतक में अगर कोई रोहतक से है यहाँ पे सो उनको पता होएगा कि राजीव गांधी स्टेडियम में हमने 1 वीक का कैंप लगाया था एक उसमें यू वोंट बिलीव एवरी डे के 250 से 300 बच्चे हमारे पास आ रहे थे जिनको इंजरी हुई और वो दोबारा गेम में एंटर ही नहीं हुए एंड इट वाज रिसर्च बेस्ड मतलब अमेजिंग थिंग हम लोग को पता चला कि बहुत ज़्यादा हमारा टैलेंट जो है इंडिया का टैलेंट इज़ रूनिंग हम लोग लिटरली वेस्ट कर रहे हैं एंड इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा जो अवेयर हो हमारे कोचेस भी अवेयर हों हमारे टीचर्स भी अवेयर हों सो दैट ऑब्वियसली प्लेयर्स को अवेयरनेस तो चाहिए उसके साथ साथ हमारे सबको अवेयरनेस चाहिए सो दैट अगर किसी को लग गई है तो उनको एक बता दिया जाए कि ओके लग गई है इसका मतलब ये नहीं है कि घर पे बैठ जाओ कम ओवर गेट द ट्रीटमेंट एंड देन गो फॉरवर्ड सबसे ज़्यादा अनदर फैक्ट सबसे ज़्यादा जो इंजरीज़ हैं वो होती हैं प्रैक्टिस टाइम पे आई वुड नेवर से कि इंजरी स्पोर्ट्स टाइम पे नहीं होती येस होती हैं सम काइंड ऑफ कोलिजन्स सम काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ इंजरी हो जाती है बट आई वुड से सबसे ज़्यादा से 62% ऑफ इंजरीज हैपन ड्यूरिंग स्पोर्ट्स प्रैक्टिसेस रादर दैन ड्यूरिंग द गेम है ना सो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए इसी चीज़ के लिए मैं आज आई हूँ आपके पास जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हम उस इंजरी को कैसे प्रिवेंट करेंगे वो हमें मेन पर्पस है हमारा आज के सेशन का आई वुड ऑल्सो टेल यू फ्यू इंजरीज जैसे पटेलो फेमोरल सिंड्रोम होता है इट इज़ अ नी इंजरी जिनको नहीं पता सॉरी इफ
the coaches know, the teachers know, but maybe some players don't know about it. So जो patellofemoral syndrome है वो shoulder injury, it could be tennis elbow, it could be hamstring strain, sciatica. So ये चीज़ें जो हैं, these are the most common injuries of sports. Now actually sports injuries है क्या? If you talk about sports injuries, हम कह तो देते हैं sports injury होगी, but होता क्या है sports injury? What is it? So sports injury is any kind of injury which happened during a sports event or in the practice sessions or during exercise. So if somebody is not a player, that could also have an injury. So ज़रूरी नहीं है कि एक प्लेयर को ही इंजरी होती है, ये दूसरे जो नॉन प्लेयर्स हैं उनको भी इंजरी हो सकती है, और उनको हो सकती है नॉर्मली मे बी वो से एरोबिक्स कर रहे हों, योगा कर रहे हों, या नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहे हों, उनको भी हो सकती है. अभी रिसेंटली ही मेरे पास एक पेशेंट आया था, उसको इंजरी हुई थी, वो अभी भी ऑनलाइन ही है. थैंक यू फॉर वॉचिंग शिवानी जी. वो एक उनको इंजरी हुई नॉर्मल एक्सरसाइज करते हुए. वो अभी उनका कॉल आया था कि मुझे मैं अपने टेरेस पे एक्सरसाइज कर रही हूँ और इंजरी होगी. आप मानोगे क्या हो सकता है? सो घर बैठे बैठे इंजरी हो जाती है, और इस टाइम पे तो इंजरीज बहुत कॉमन इसलिए भी हैं बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइजेस करने की कोशिश कर रहे हैं सारे, एंड मोर ओवर इस टाइम डॉक्टर ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो इंजरीज वो अपने आप ही कैसे प्रिवेंट करना है. सो यू शुड नो अबाउट इट. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट एक्यूट इंजरीज एंड क्रॉनिक इंजरीज. ओके, आई एम श्योर मेरी आवाज़ अब प्रॉपरली आ रही है ना सबको? मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा था. ठीक है, ओके ग्रेट. सो इट्स गुड गोइंग, राइट? ग्रेट. सो एक्यूट इंजरीज, इफ यू टॉक अबाउट एक्यूट इंजरीज आर द सडन इंजरीज जो एकदम एक ही सेशन में हो जाती है. से इट कुड बी अ स्प्रेन और अ स्ट्रेन लिगामेंट इंजरी. एक्यूट मतलब एकदम हुई. अब इसका ट्रीटमेंट मैनेजमेंट डॉक्टर साहब पहले डिस्कस कर चुके हैं. मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज ये एक सेशन में हो चुका है पेफी के साथ ही, तो ये सेशन में ज़्यादा खींचूंगी नहीं बिकॉज ही हैज़ मेड इट वेरी क्लियर. बट अभी के लिए मैं फोकस मेरा है स्पोर्ट्स प्रिवेंशन के ऊपर ही, बट देन बीच बीच में अगर मैं थोड़ा सा करूँ तो जस्ट टेक इट. ओके, सो क्रॉनिक इंजरीज, एक्यूट आई टोल्ड यू, स्प्रेन हो सकता है, स्ट्रेन हो सकता है, and then chronic injuries, है ना? So chronic injuries is overuse of any joint, any part of the body, and overuse of any ligament. That is kind a chronic injury. I have a little friend of mine along. I would introduce, say hi to them. Hi. राइट. एक इसको मैं ये क्यों दिखा रही हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज कोचेज़ ने देखा है, टीचर्स ने देखा है, बट आई एम श्योर बहुत सारे प्लेयर्स ने नहीं देखा होगा. और बहुत कॉमनली हमारे पास आते हैं बोलने, हमें टेनिस एल्बो हो गया, हमें गोल्फर्स एल्बो हो गया, हमें यहाँ पर लग गई, हमें वहाँ पर, बट दे डोंट नो अबाउट द एनाटमी, कहाँ पर क्या है. राइट. सो दिस इज़ द रेडियस, दिस इज़ द अल्ना. थोड़ा सा सॉरी हिला हुआ है ये, बट लेट्स टेक इट द अदर वे. सो मीडियल एंड लैटरल. So this is where we have the golfer's elbow. If you can see, this is where we have the golfer's elbow. The lateral side पे we have the tennis elbow, the tendon. Tendon में हमें अगर इंजरी हो जाती है, we call it a tennis elbow. उसके साथ बहुत सारी इंजरीज हैं. I will take him along थोड़ा थोड़ा बीच बीच में. So उसके साथ any kind of injury, like another one I would tell you, it's a boxer's fracture. So boxer's fracture, fifth metacarpal. These are phalanges, these are carpals, these are metacarpals. So fifth metacarpal boxer's fracture can happen to anybody. ये boxing most common, boxing के दौरान हो जाता है, और लड़ाई के समय भी होता है. बहुत सारे पेशेंट आते हैं, हमने किसी को मार दिया, दीवार पे मार दिया, या हमने कहीं और हिट कर दिया somehow.
सो यस, उसके ड्यूरिंग हमें लग गया और वो बॉक्सेस फ्रैक्चर हो गया. अच्छा, आई हैव अनदर इंटरेस्टिंग थिंग फॉर यू, जस्ट टू लेट यू नो सम इंटरेस्टिंग नेम्स जो हमारे फ्रैक्चर्स के नेम्स हैं. लाइक वी हैव रोनाल्डो फ्रैक्चर. रोनाल्डो को सब जानते हैं, हमारा बहुत फेमस फुटबॉल प्लेयर है, सॉकर प्लेयर है. सो रोनाल्डो फ्रैक्चर इज़ वन, जो उसके नाम पे ही रख दिया, ठीक है. इट वाज अ नी फ्रैक्चर. देन वी हैव गेम कीपर्स थंब, वी हैव अ जंपर्स नी, रनर्स नी, एथलीट्स फुट, एथलीट्स फुट हो गया, बॉक्सर फ्रैक्चर आई टोल्ड यू, गोल्फर्स एल्बो, टेनिस एल्बो. सो ये सारे फ्रैक्चर्स जो हमने सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स इंजरीज़ के नाम पे रख दिए. सो दिस लाइक वेरी इंटरेस्टिंग. मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था जब मैं अपने टाइम पे पढ़ती थी कि ये कुछ है, कुछ इंजरी होती है और ये नाम उनके ऊपर ही डाल दिए गए. सिर्फ टेनिस प्लेयर्स को टेनिस एल्बो हो जाता है. सो यू नो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी. गोल्फर्स एल्बो, सो ओके. लेकिन ये नहीं है कि ये वाली इंजरी सिर्फ और सिर्फ उनको ही होती है जो टेनिस प्ले कर रहे हैं या सिर्फ गोल्फ प्ले कर रहे हैं या कोई और जो भी नाम हमने बोले. इट कैन हैपन टू एनीबडी. सो एनीबडी हु इज हैविंग, से अभी किसी ने वेट लिफ्ट कर दिया, ही माइट हैव अ टेनिस एल्बो, बहुत कॉमन है. सो पेशेंट्स बहुत सारे आते हैं हमारे क्लिनिक पे, जस्ट यही बोलते हैं हमारे पेन हुई, इस साइड पे पेन हो रही है, मीडियल साइड पे या लैटरल साइड पे, वी नो इट हाउ टू हैंडल दैट. सो हाँ जी, हमें ना टेनिस एल्बो है, बट टेनिस एल्बो है क्या? सो दैट्स व्हाट यू नीड टू नो. थोड़ा सा आई वुड सजेस्ट ऑल द प्लेयर्स ऑल्सो टू लर्न अबाउट द एनाटमी ऑफ द बॉडी. थोड़ा चाहे, बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली आपको ज़रूरत नहीं है. सो उस चीज़ को आपको थोड़ा सा एनाटमी अगर करेंगे. सर, आई विल टेक योर ऑल द क्वेश्चंस. आई एम सॉरी आई डिड नॉट से इन द बिगिनिंग, मेरे माइंड से स्किप कर गया. आई विल टेक ऑल द क्वेश्चंस एट द एंड. मैं लास्ट के 10-15 मिनट आप सबके क्वेश्चंस के लिए रखे हैं. मैं बिल्कुल सब क्वेश्चंस आपके लूँगी. आप सारे क्वेश्चंस के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं. आई डोंट वांट टू लूज़ एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो अभी मैं नहीं दे पाऊँ. क्वेश्चंस मैं आपको फ़ोन पे भी बता सकती हूँ और आपको मैंने मेल आईडी भी प्रोवाइड की है. आप मुझे जितने मर्जी क्वेश्चंस कीजिए. आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. एनी काइंड ऑफ पेन, प्रॉब्लम्स, एनीथिंग, आई एम स्ट्रेट अवे फॉर यू. But for now, just let me finish off with the information first. मैं individually लेने के लिए भी ready हूँ आप लोग के questions, ठीक है. Thank you and really sorry कि मैं आपके questions अभी skip कर रही हूँ, ठीक है. Just take it that way, है ना. End में मैं 15 मिनट रखूँगी, आपके questions बिल्कुल sort out किए जाएंगे. और वही repeat कर रही हूँ कि अगर नहीं होते तो मैं last में अपना number भी दूँगी या you can take it from Pefi people. सो वो आप मुझे मेल कीजिए, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए. मैं आई सॉर्ट इट आउट. आई सॉर्ट आउट एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स, ठीक है जी. ओके, मेरे पास अभी मटेरियल बहुत है एंड एक्चुअली ऐसा मटेरियल है जो आप यू विल लव टू हियर अबाउट इट. सो जस्ट लिसन, जस्ट bear with me for some time. Okay, so that was a few interesting things that I had to tell you. Then we have some risk factors for sports injuries. We can actually divide those risk factors into intrinsic and extrinsic factors. कई ऐसे factors होते हैं जिनको हम modify कर सकते हैं, कई ऐसे होते हैं इनको non modify कर सकते हैं, और कई ऐसे होते हैं जो हम inherited होते हैं, है ना. So let's talk about modifiable factors first. So the muscle strength of the body and the power, हम लोग इसको modify कर सकते हैं. Every player knows about it. हम लोग से अगर हम से मेरा hand weak है, मैं इसको beginning में free hand exercise करूँगी and later on I increase the weight, say maybe half kg से मैं start करके and then 1 kg and then maybe further increase करूँगी. So मेरे hand की strengthening हो जाएगी. So the muscle strength जो है वो मैं increase कर सकती हूँ. Along with that the power can also be increased. जिम भरा हुआ है जी, जाके देखिए वहाँ पे जिम, वो पावर ही इंक्रीज़ कर रहे हैं अपनी, कर क्या रहे हैं, हाँ अपनी मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज़ कर रहे हैं. सब जिम वालों को पता है ये चीज़ें, लेकिन इंजरी उनको भी होती है और आते हैं. एंड एक और छोटा सा फैक्ट ये है कि जितने मैंने आज तक जिम वाले लोग देखे हैं, सब ज़्यादा उनको सबसे ज़्यादा पेन होती है.
फीमेल्स आती हैं हमारे पास, दे आर लाइक वेरी नॉर्मल, अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, चले जाते हैं. अगर हम मोबिलाइज भी करते हैं तब भी बड़े नॉर्मली करते हैं, एंड देन दे फाइन. बट जो जिम वाले हैं वो सबसे ज़्यादा रोते हैं, नहीं नहीं यहाँ नहीं, नहीं नहीं वहाँ नहीं, प्लीज़ ध्यान रखो, ज़्यादा हो रहा है, ये है वो, यू नो. सो यू नो दिस इज अ स्मॉल फैक्ट. अब दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी. सो कमिंग बैक टू मॉडिफाइबल. सो फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्किल लेवल. सो फ्लेक्सिबिलिटी ऑब्वियसली हम इंक्रीज़ करते हैं अगर हमारी कोई मसल स्ट्रेच नहीं हो रही, अगर हम एबडक्शन कर रहे हैं से हैमस्ट्रिंग्स की, तो सॉरी एडक्टर्स की हम एडक्शन कर रहे हैं, एंड वी स्ट्रेचिंग आउट आवर बॉडी, स्ट्रेचिंग पूरी स्ट्रेच कर रहे हैं, तो वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता है. ये नहीं कि एक ही बारी में फुल स्ट्रेच हो गया, नो, इट कांट हैपन, है ना. सो ग्रेजुअली ही इंक्रीज़ होती हैं ये चीज़ें. ये नहीं है कि आप फर्स्ट डे बोलो और यू आर द बेस्ट, नो नो, दैट कैन नॉट हैपन. ये सब चीज़ें आराम आराम से होती हैं. ऐसा नहीं है कि आप पूरे महीने की मेडिसिन एक ही दिन में खा लोगे. पैरासीटामोल ले रहे हो तो एक दिन में पूरा खा के फीवर नहीं उतरता. यू हैव टू हैव इट इन इंस्टॉलमेंट्स. ठीक है, जैसे अभी खाई है, उसके बाद 6 घंटे बाद खाओगे, और उसके बाद फिर 6 घंटे बाद खाओगे. ये तो नहीं है कि अभी के अभी आप सारी मेडिसिन खा लोगे और आप ठीक हो जाओगे, ऐसा हो ही नहीं सकता. एंड द सेम गोज़ फॉर एक्सरसाइजेज. वीव गॉट मैनी पेशेंट्स कमिंग अप विद फॉर अस एंड सेइंग अगर हम आज सारी एक्सरसाइज कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा ना, अगले हफ्ते तो नहीं मतलब आगे तो नहीं करना पड़ेगा. व्हाट डू यू मीन? जस्ट थिंक ओवर. आपको 21 डेज कम से कम एक हैबिट अडाप्ट करने के लिए लगते हैं, तो हम लोग को एक एक्सरसाइज कंटिन्यूसली क्यों नहीं करनी पड़ेगी. वही इम्पॉर्टेंट है. सो जस्ट मेक श्योर, देन डोंट आस्क दैट क्वेश्चन. आपको खुद समझ आ जाना चाहिए. आप तो प्लेयर्स हैं, आप कोचेज़ हैं, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपने स्टूडेंट्स को, अपने प्लेयर्स को, कि एक दिन में नहीं, ये कुछ भी अगर हमने सीखना है, कोई स्किल डेवलप करनी है, कोई प्लेयर जब आता है, न्यू प्लेयर जब आता है, तो उसको एक स्किल डेवलप की जाती है. ऐसे नहीं है कि एक ही बारी में चलो जी वो ओलंपिक्स तक पहुंच गया. नो, दिस कैन नॉट हैपन. उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है. बहुत सारे प्लेयर्स सुबह 5 बजे उठ के, और मे बी बिफोर उठ के एक्सरसाइज करते हैं पहले. आई विल कम अप टू द फैक्टर्स जो वो करते भी हैं. कई करते हैं, कई नहीं भी करते. जो नहीं करते उनके लिए आई एम हियर, बट जो करते हैं, ओके, कीप डूइंग इट, वेरी गुड. बट द फर्स्ट थिंग इज कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा, स्किल इम्प्रूव करना पड़ेगा. ये नहीं है कि मैं 10 साल का बच्चा आ गया और उसको सब कुछ आता है. नो, यू हैव टू उनको अंदर भरना तो पड़ेगा कुछ. दे हैव टू हैव समथिंग इन देयर माइंड. दे हैव टू, उनको अपने परसेप्शंस इंक्रीज करने पड़ेंगे, एक्टिविटी इंक्रीज करनी पड़ेगी, तभी तो उनको कुछ आएगी, कोई गेम खेलनी आएगी. किसी को फर्स्ट डे आके रूल्स नहीं पता चलते कि बास्केटबॉल के क्या रूल्स हैं या फुटबॉल के क्या रूल्स हैं. दे डोंट नो. सो वो लर्न करना पड़ेगा. वो एग्जैक्टली एक दिन में नहीं होगा, वो ग्रेजुअली होगा. एंड द सेम गोज़ फॉर एक्सरसाइजेस. सो आराम से ग्रेजुअली कीजिए. ठीक है, एक दिन में कोई भी एक्सरसाइज फिनिश नहीं कीजिए. एंड डोंट इवन थिंक कि वो हो सकता है. दैट विल एक्चुअली कॉज एन इंजरी. वो इंजरी कॉज करेगा. ओके, सो स्किल लेवल आई हैव डिस्कस्ड कि स्किल लेवल के हिसाब से अपना जो बच्चा आता है हमारे पास, हम उसको ट्रेन करते हैं. सो ट्रेनिंग इज व्हाट इज द स्किल लेवल, एंड हाउ टू इंक्रीज दैट स्किल लेवल इज व्हाट वी नीड. देन वी हैव नॉन मॉडिफाइबल, जिनको हम चेंज ही नहीं कर सकते. लाइक कोई भी स्ट्रेंथनिंग ऑफ द प्रीवियस इंजरी. कोई हम पहले इंजरी हुई है, उसको उस टाइम पे कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला, कुछ नहीं किया, एंड देन सडनली यू कम अप एंड से अब तो मैं गेम में आ जाऊंगा क्योंकि ये तो ठीक नहीं हो रही. वो और इंजरी कॉज करेगा. वो ये नहीं है कि आप उसी टाइम आप बोलोगे कि नहीं हो गया, अब मैं करूँगा ही करूँगा. वो री इंजर होएगा, री अकरेंस होती है. सो यू हैव टू बी केयरफुल. यू कांट जस्ट से कि नहीं जी अब मैं आज ये तो ठीक होएगा नहीं, एंड यू नो आई हैव टू कम बैक टू द गेम. नो, प्लीज़. मैं आपको ऐसे प्लेयर्स बताऊँगी. यू टॉक अबाउट, मैंने रोनाल्डो का एग्जाम्पल दिया था आपको पहले भी कि उसके नाम पे फ्रैक्चर है. रोनाल्डो हिमसेल्फ गॉट इंजरी. उसको था MCL इंजरी हुई थी. MCL इंजरी हुई थी उसको, मीडियल कोलेटरल इंजरी, लिगामेंट की इंजरी होती है. सो वो उसको इंजरी हुई थी. अब उस इंजरी को उसने रिकवर किया. ही केम बैक टू द गेम. इफ आई गो फॉर इंडियन प्लेयर्स,
ठीक है. इफ़ आई टॉक अबाउट सचिन तेंदुलकर को टेनिस एल्बो हुआ था. अब बताओ, ठीक नहीं हुआ? उसने कितनी गेम्स प्ले की हैं, उसने इतना all the time he's been playing and he's been the best player. So उसने ठीक है रेस्ट ज़रूर किया, प्रॉपर एक्सरसाइजेस, प्रॉपर रिहेबिलिटेशन किया, आई एम श्योर उसकी प्रॉपर फिजियोथेरेपी भी हुई है, और वो सारे एक ना लेवल होता है हर एक चीज़ का. सो यू हैव टू कवर दैट अप. अगर हमने फिजियोथेरेपी करा ली और उसके बाद रिहेबिलिटेट नहीं किया, देयर इज़ नो पॉइंट. हमको सारी पॉइंट वाइज चलना पड़ता है, ग्रेड वाइज चलना पड़ता है कि यस हम पहले ये करेंगे, पहले फिजियो कराएंगे, पहले पेन रिलीव करेंगे, सो उसके बाद हम उसको रिहेबिलिटेट करेंगे बॉडी को. सो यू हैव टू गो दैट वे. ठीक है. सो सचिन तेंदुलकर रिकवर्ड एंड ही केम बैक टू द गेम एंड ही इज प्लेड वेरी वेल. अनदर प्लेयर आई वुड से इज सानिया मिर्ज़ा. सानिया मिर्ज़ा को जंपर्स नहीं हुई थी. व्हाट इज़ अ जंपर नी? पटेलर टेंडन जिसकी इंजरी हो गई, उसको उसने ठीक किया, केम बैक टू द गेम, फुल फ्लैज उसने टेनिस प्ले किया है और बहुत अच्छे से किया है. सो ऐसे ही मैं आपको 2-4 नाम बता रही हूँ जो बहुत फेमस हैं. ऐसे आई एम श्योर सभी प्लेयर्स को इंजरी होती है और सभी प्लेयर्स को सबको ही इंजरी से रिकवर भी होते हैं. सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम. ओके. देन वी हैव द एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स लाइक ट्रेनिंग कितनी मिल रही है, ट्रेनिंग के हिसाब से. सो दिस डिपेंड्स अपॉन द कोच एंड ऑफ कोर्स द प्लेयर कि तुम कितनी कोचिंग ले रहे हो, कितनी ट्रेनिंग कर रहे हो. से कई प्लेयर्स ऐसे हैं जो कोचिंग नहीं ले सकते. सो आई वुड रिकमेंड अपने आप करो ना, करो तो सही, स्टार्ट तो करो, एक बार इन्फॉर्मेशन लो. आजकल तो यूट्यूब पे इतना कुछ है. सो टेक दैट इन्फॉर्मेशन एंड देन स्टार्ट योर एक्सरसाइजेस, स्टार्ट योर ट्रेनिंग योरसेल्फ. डेफिनेटली अगर अंडर द कोच, अंडर द ट्रेनर करोगे, दैट इज़ द बेस्ट. बट अगर नहीं है तो जस्ट डू इट. यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर न्यूट्रिशन. ये नहीं है कि हम बस खेली जा रहे हैं. नो, अपने न्यूट्रिशंस का पूरा ध्यान रखना है. आई विल डिस्कस इन डिटेल कि क्या न्यूट्रिशंस कैसे. देन आई टॉक अबाउट इक्विपमेंट्स. लेट मी जस्ट सी, मेरे पास बहुत कम टाइम भी है. सो इक्विपमेंट्स एंड देन द एनवायरनमेंट, है ना. सो सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम लोग को हमें करना पड़ेगा. राइट. सो फैक्टर्स टू प्रिवेंट द इंजरी. So coming back to prevention of injury again. So the first main factor is warm up. So if you talk about warm up and cool down, तो warm up को हम divide कर देंगे different types में. So एक होता है general warm up. General warm up मतलब आप से jogging कर रहे हो या एक sprint करके आ गए, है ना. So that is general. Okay. Then we have स्पेसिफिक स्पोर्ट्स एक्सरसाइजेज. से अगर हम करेंगे टेनिस का प्लेयर है या बैडमिंटन का प्लेयर है, सो उसको कैसे करना पड़ेगा? अपर का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा. सो दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर अपर मोर. बट येस डेफिनेटली अगर लोअर की नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बनेगा. ठीक है. सो अपर भी ज़रूरी है. बेनिफिट क्या है? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वार्म अप? सो इंक्रीजिंग द ब्लड फ्लो टू द मसल्स. आई एम श्योर एवरीबडी नोज अबाउट इट. कोचेस टीचर्स को तो पता ही है सारा, बट एक बार स्टूडेंट्स को थोड़ा सा आप अच्छे से सुनिए इस चीज़ को. इट इंक्रीजेज द ब्लड फ्लो टू द मसल्स एंड डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल्स. अगर ऑक्सीजन इंक्रीज होएगी तो आपको न्यूट्रिशंस मिलेंगे वहाँ पर. उससे आपकी रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज होएगी. वार्म अप से आप स्ट्रेचिंग करोगे तो आप मसल स्ट्रेच करोगे, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी, आपकी जो नर्व इम्पल्सेस है उसकी स्पीड इंक्रीज होगी. इफ़ यू टॉक अबाउट वैस्कुलर रेजिस्टेंस, वो डिक्रीज होगी, आपकी मेटाबॉलिज्म को इन्हांस करेगा. इंजरीज ऑब्वियसली डिक्रीज होंगी अगर आपकी रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज होगी, है ना. आपकी जो स्टिफनेस है कनेक्टिव टिश्यू की, उसकी दैट लीड्स टू
मसल टेयर्स. सो आपको ध्यान रखना पड़ेगा हर एक चीज़ का. यू हैव टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग कि आप वार्म अप प्रॉपर करोगे और आप कूल डाउन प्रॉपर करोगे. आपको एक कार्डियोवैस्कुलर रिस्पॉन्स मिलता है ऑफ स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट इज़ वेल. आप एक सडन रिस्पॉन्स दे पाओगे अगर आप वार्म अप करोगे. से कोई इंजरी होने वाली है, से आपने कोई पेट में पैर रख दिया या कुछ ऐसा कर दिया, तो आपको पता है कि आपका पैर एकदम ऐसे जाएगा. तो आपका जो माइंड है, इट नोज कि मैं एकदम उसको बचाऊंगा. कैसे बचाना है. सो मैनी प्लेयर्स हैव कम अप एंड ऑलवेज आस्क्ड कि हमें वार्म अप करना है और कितना करना है. सो देयर इज़ नो इंटेंसिटी रिटन. कोई इसका डेटा नहीं है कि कितनी इंटेंसिटी और कितनी ड्यूरेशन करना है. सो इट डिपेंड्स कि आप 10 मिनट कर रहे हो या 15 मिनट कर रहे हो. इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल प्लेयर. आपकी गेम कैसी है, आपका कैसा एक्टिविटी है. सो यू हैव टू डू वार्म अप अकॉर्डिंग टू दैट. लेकिन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू वार्म अप एटलीस्ट 30 मिनट्स बिफोर. क्योंकि 30 मिनट्स से पहले जो आपकी गेम है उससे. क्योंकि अगर आप 30 मिनट्स से पहले कर लेते हो अपनी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता. सो यू हैव टू मेक श्योर कि 30 मिनट्स के बीच में ही आप अपनी वार्म अप सेशंस लीजिए. एंड डू नॉट गेट फटीग्ड. अपना ध्यान रखना कि सिर्फ थोड़ी स्वेटिंग हो. ये नहीं कि आप पहले ही थक जाओ और गेम अभी बाकी है. सो ऐसा नहीं करना आपको बिल्कुल भी. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट एज वेल. आई विल come up with stretching exercises. So stretching also helps in prevention of any kind of injury. So stretch actually है क्या? So if we talk about stretch, मैं एक छोटा सा, बहुत सबने ये रबर बैंड भी देखा होगा, ठीक है. सो इसको स्ट्रेच करना है, राइट. सो वी जस्ट स्ट्रेच इट. सो मसल भी ऐसी ही है. सो वी नीड टू स्ट्रेच द मसल. अगर ये एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है तो इंजरी हो सकती है. सो स्ट्रेचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्ट्रेचिंग इज़ टू इम्पॉर्टेंट. स्ट्रेचिंग इज़ टू इम्पॉर्टेंट. अच्छा, स्ट्रेच बिफोर ऑल द एक्सरसाइजेस. स्पॉट्स आपको इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. गो जेंटली एंड स्लोली. हमें कोई भी इंजरी नहीं चाहिए बिफोर द गेम. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू नॉट गोइंग टू दैट एक्सटेंड कि आपको इंजर हो जाए, ठीक है. और कोई भी हमें पेन नहीं चाहिए. उसी रेंज ऑफ मोशन तक जाइए जहाँ तक आपको पता है कि मुझे कोई पेन नहीं होगा. सो डोंट गो बियॉन्ड, ठीक है. कोई थ्रस्ट नहीं हम लोग को देना, कोई कुछ नहीं करना. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट एज वेल, ठीक है. अब ये कैसे हम लोग को प्रिवेंट करता है. इट इंक्रीजेज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मसल्स, जॉइंट्स. जो हमारे मसल्स इनएक्टिव थे फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो हमारे या ओवर एक्टिविटी हो सकती है या इंजरी, उसको प्रिवेंट करने के लिए यू नीड टू स्ट्रेच योर मसल्स. एंड हाउ डू वी डू इट. से अ सिंपल एक्सरसाइज. अगर मुझे सिर्फ नेक मसल्स की करनी है, जैसे सबको आजकल आई एम श्योर नेक मसल्स में प्रॉब्लम आ ही रही होगी बिकॉज दे आर यूजिंग फोन्स ऑल द टाइम. लॉकडाउन के टाइम सभी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं. सो एक it's a quick stretch. This is covering all your muscles here, ठीक है. आपके sternocleidomastoids, cranii muscles, आपके trapezius, it's covering everything. uppering करो activity. So you can do it whenever you want it. एक normal stretching है. Yes, I am going to come up with static and ballistic. Paramji, okay, I will. So इसमें जो भी हमारी मसल सोरनेस होती है ड्यूरिंग हाई इंटेंसिटी गेम्स लाइक बास्केटबॉल या फुटबॉल, तो उसकी मसल सोरनेस को भी प्रिवेंट करती है. और अगर हमारी कोई ओवर एक्टिविटी है, से अगर मैं अभी, मुझे कल ही एक कॉल आई थी डेनमार्क से. सो आई हैड अ पेशेंट देयर. उन्होंने मुझे कहा कि मैंने क्रिकेट प्ले किया आफ्टर 2 years एंड आई डिड नॉट डू एनी वार्म अप बिफोर दैट. सो उनको इंजरी हो गई एंड दे कॉल्ड अप फॉर दैट ओनली कि मुझे इंजरी हुई है, अब मैं क्या करूं. मैं कहा आपको कॉल करना चाहिए था जब आपने गेम स्टार्ट करनी थी.
यू शुड हैव कॉल्ड देन कि मुझे अब वार्म अप करना है, मुझे वार्म अप की थोड़ी सी टिप्स दे दो. रादर यू कॉलिंग नाउ व्हेन इंजरी हैज हैपेंड. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू वार्म अप. ठीक है. सो टाइप्स ऑफ इंजरी, static injury and then we have ballistic injury. Static injury, static stretching I would come over to. Injury नहीं है वो, static stretching है. So stretch, I told you any kind of stretch. It could be for this, for your wrist or for your neck as I told you. So इसको अगर हम hold and relax करेंगे, like if I talk about my hand, if I'm doing flexion of the hand, so of the wrist, and I'm holding it for 10 seconds, holding it for 10 seconds and then relax. This is a better method. This is a static method, hold and relax. So hold it for 10 seconds, like 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and then coming back and relaxing, then going for another and then coming back. So this is what a static stretch is. So again, discomfort level तक नहीं जाना, only do it till the point जहाँ तक आप कर सकते हो. There should be no pain before a game. You should make sure that in your mind. So this is the most safest method to increase your flexibility. Very safe. Then we have the ballistic ones. The ballistic is जो mainly aerobic जो games aerobics होती हैं उनके लिए यूज़ होता है, या बैले डांसर्स यूज़ करते हैं, बिकॉज उनको ओवर स्ट्रेचिंग करनी पड़ती है ऑफ देयर जॉइंट्स. सो ओवर स्ट्रेचिंग, दिस लाइक अ नॉर्मल स्ट्रेच, ओवर स्ट्रेचिंग. सो गोइंग बियॉन्ड द रेंज ऑफ मोशन इज गोइंग फॉर अ बैलिस्टिक स्ट्रेच. सो ये उस जॉइंट की या मसल की टेंशन और रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है. देन वी कम ओवर विद the PNF patterns. PNF patterns are the proprioceptive neuromuscular facilitation methods. So इसमें क्या है? This is the most effective, but it should be done under an observation. So कोई भी कोच अगर उनको आता है ये, तो उनके अंडर कीजिए, या फिर कोई फिजियोथेरेपिस्ट है, he knows it better. So इसमें क्या होता है? आपकी एगनिस्ट एंड एंटागनिस्ट दोनों मसल्स की कंट्रैक्शन होती है, और ये दोनों की मतलब एक ही रिलैक्सेशन करेगा, एक ही कॉन्ट्रैक्शन करेगा, एंड दिस इज़ द बेस्ट मेथड टू बी यूज्ड, एंड इट इंक्रीजेज मोर फ्लेक्सिबिलिटी देन एनी अदर टेक्निक. दिस इज द बेस्ट मेथड, बट इट इज़ टू बी डन अंडर एन ऑब्जर्वेशन, सो यू कांट जस्ट डू इट ऑन योर ओन, राइट. देन वी कम ओवर टू टेपिंग एंड ब्रेसिंग. टेपिंग एंड ब्रेसिंग, अगर आपकी कुछ छोटी सी आपको लगता है मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया था, बट इट इज़ नॉट अ मेजर इंजरी, थोड़ा सा लगा है. बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे आते हैं कि हमें थोड़ी सी लगी है, एंड बट मुझे लगता है कि मैं गेम प्ले कर सकता हूँ. सो उनको स्पेसिफिकली टेपिंग या ब्रेसिंग ज़रूर करनी चाहिए. सो टेपिंग करता क्या है? इट रिस्ट्रिक्ट्स द अनवांटेड मूवमेंट जो हमें नहीं चाहिए, लाइक ओवर कुछ भी से मैंने अगर कोई उनका एक एंकल में थोड़ा सा भी ट्विस्ट हुआ हो, और वहाँ पर उनको लगा कि थोड़ी सी पेन है, थोड़ी सी स्वेलिंग है, बट स्टिल आई कैन प्ले, तो वहाँ पर एक टेप, वी हैव अ के टेप, द फिजियोज नो इट. सो वो के टेप हम लोग वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. सो के टेप अप्लाई करने से वो के टेप के बहुत सारे यूजेस हैं. इट कैन बी यूज्ड फॉर एज अ ट्रीटमेंट एज वेल, एंड देर आर अनदर. से इट्स नॉर्मल, अगर क्रेप बैंडेज भी बांध सकते हो तो वो भी बांध दो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट, नो, वो भी कर सकते हैं. सो एक ये हो गया. नॉर्मल एंकल ब्रेस, नी ब्रेसेस हम यूज़ करते हैं, वो भी कर सकते हैं, ठीक है. के टेप हम मेनली उसके लिए ट्रीटमेंट्स के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं वैसे, बट नॉर्मल हम इसके लिए हम एंकल ब्रेस हो गया, नी ब्रेस हो गया, एंड वी हैव अ लंबोसेक्रल ब्रेस फॉर द वेट लिफ्टर्स. आई कैन शो यू. सो दिस इज़ व्हाट अ लंबोसेक्रल ब्रेस. सो बहुत कॉमन है, वेट लिफ्टर्स इसको यूज़ करते हैं. आई कैन शो यू हियर एज वेल. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ जिम बेल्ट, मतलब ठीक है. सो ये पहन के वो दे आर एबल टू सपोर्ट देमसेल्व्स फॉर पिकिंग अप हैवी वेट्स. सो इससे क्या है, इंजरी को बचा सकते हो, ठीक है. और भी सभी चीज़ों के लिए आता है, टेनिस एल्बो के लिए भी आता है. सो इफ़ यू नो थोड़ी सी पेन है तो जस्ट गो फॉर दीज. देन वी हैव रिहैबिलिटेशन, हीलिंग. सो जब भी थोड़ी सी आपको लगे कि
मेरे को लगी थी और मैंने अपना गेम भी प्ले कर लिया है अब, सो उसके बाद आके प्लीज़ उसको रिहैबिलिटेट कराइए। आपको पता है गेम ओवर हो चुकी है, लेकिन स्टिल यू नो कि इंजरी ज़रूर थी, सो उसको एक ट्रीटमेंट ज़रूर चाहिए। सो डोंट थिंक कि मैं एक ही बारी में बस वो मेरे गेम तो हो गई, अब मुझे क्या करना है। सो यू हैव टू थिंक फर्दर कि मेरी नेक्स्ट गेम भी आएगी और मुझे वो इंजरी दोबारा हो सकती है, और क्यों हो सकती है, बिकॉज आई नो कि वो मेरा जो पॉइंट है, वो मेरा जो मसल है दैट इज़ वीक। सो मुझे उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आज का नहीं सोच के चलना, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द फर्दर। अपना फ्यूचर देखो कि मेरी उस गेम के ऊपर क्या फ्यूचर है ना। सो मेक श्योर उसके साथ वो प्रोप्रियोसेप्शन एक मैकेनिकल सपोर्ट देती है जो हमारा ब्रेस है, इट गिव्स अ प्रोप्रियोसेप्शन से अगर वही आपको लगने वाली हो, आपको पता है कि मैंने नी ब्रेस पहना है, तो एकदम ट्विस्ट अगर होए तो यू नो कि मैंने नी ब्रेस पहना, सो आई हैव टू बी केयरफुल। मेरे को एकदम अनवांटेड मूवमेंट्स नहीं करनी है। सो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर इंजरी यू हैव, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अगर से ऑन द स्पॉट थोड़ी इंजरी होगी, आपको लग रहा है स्वेलिंग है, तो आप अपना से अगर फुट में इंजरी है, नी में इंजरी है, सो यू जस्ट टाई अ क्रेप बैंडेज अराउंड। सो अगर आपका फुट है, सो यू स्टार्ट टाइंग अ क्रेप बैंडेज, अ टाइट क्रेप बैंडेज फ्रॉम हियर टिल योर नी, मे बी, आई नो दिस इज एन एल्बो बट जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। सो यहाँ से लेके नी तक, मैम जो नी में है ना, सो नी में उसको टाई करके उससे क्या होएगा, आपकी जितनी भी स्वेलिंग है दैट ड्रेन्स। सो यहाँ से टाई करने का क्या मतलब है, अगर टाइट हुई तो ये ब्लूइश हो जाएगा, थोड़ा साइनोसिस आ जाता है। सो यू गेट टू नो फ्रॉम द टोज और द फिंगर्स इफ़ यू यूजिंग इट फॉर द अपर लिम्ब। सो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देन वी हैव प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। यस आई विल, मेरे को थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए प्लीज़, आई विल टेक योर क्वेश्चंस। So protective equipments like helmets, face shields, knee pads, shin pads, जितने भी हम लोग क्रिकेट में यूज़ कर रहे हैं, उसमें सारे फेस पैड्स ये बेसबॉल में यूज़ करते हैं, ग्लव्स यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत सारे इवेंट्स में पहना जाता है, बट अभी भी ऐसे इवेंट्स हैं जहाँ पर नहीं पहना जाता। द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट फॉर व्हीलचेयर क्रिकेट इंडिया, आई वुड शेयर एन एग्जाम्पल। तो अब तो आई एम श्योर वो सारे सब कुछ पहनते हैं, सारे इक्विपमेंट्स पहनते हैं, बट बहुत सारे प्लेयर्स मैंने वहाँ पर देखे थे जो फेस कवर करने के लिए, यू नो द हेलमेट जो चाहिए होता है क्रिकेट में, सो दे नेवर यूज टू वेयर दैट। तो हम लोग ने उनको फोर्सफुली बोला था कि नहीं प्लीज़ नाउ यू हैव टू वेयर इट, आई नो इट इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल, बट इफ़ यू नॉट वेयर इट, इंजरी अगर हो गई तो क्या करोगे, आपको हेड इंजरी भी हो सकती है एक बॉल से। So you have to make sure that you wear your proper equipments. You have to make sure कि जो आपके equipments हैं वो आपके अपने साइज़ के हैं। ये नहीं है कि आप छोटे बच्चे को बड़े equipments पहना दो और बड़े को छोटे बना दो। No, you have to make sure अगर आप नॉर्मल से हेलमेट पहन के बाहर नहीं जाते स्कूटर पे, है ना, और आपका प्रॉपर टायर्ड नहीं है और आपका हेलमेट गिर जाए, तो व्हाट वुड यू डू, वो गिरेगा ही गिरेगा, वो हेड इंजरी होएगी। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डोंट हैव दैट इंजरी। ठीक है, ये तो नॉर्मल हमारा एवरीडे का एग्जांपल है। सो अभी के लिए आप अपने सारे इक्विपमेंट्स, ऑल द कोचेज, ऑल द प्लेयर्स, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू मेक श्योर दैट आपके सारे इक्विपमेंट्स आर वेल इक्विप्ड। आपके रैकेट्स, आपके बैट्स, क्योंकि इन चीज़ों से इंजरी होने के बहुत सारे चांसेस हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर अबाउट दैट। आपके रनिंग शूज़, आई हैव सीन मैनी प्लेयर्स यूजिंग रनिंग शूज़ इन देयर सॉकर और रनिंग शूज़ इन देयर बास्केटबॉल। नो, दे हैव देयर स्पेसिफिक शूज़, यूज़ देम, यू यूज़ देम। 6 मंथ्स के लिए चलते हैं रनिंग शूज़, अगर उसको स्पेसिफिकली जाओ, सो दे ओनली वर्क फॉर 6 मंथ्स। रनिंग शूज़ को वहीं पर पहनो जहाँ पर उसकी ज़रूरत है, नहीं तो 4 फुट इंजरी हो सकती है। सो यू हैव टू मेक श्योर अबाउट एवरीथिंग। डोंट यूज़ डिफेक्टिव इक्विपमेंट्स, डोंट यूज़ देम, बिकॉज दैट कैन अगेन लीड टू इंजरी एंड यू विल हैव टू सफ़र बिकॉज ऑफ दैट स्मॉल माइनर इग्नोरेंस।
again, the environmental factors which have to be covered are you need proper clothing, proper training, proper चाहिए. मतलब you can't just say कि मुझे आ गया. No, you have to learn that specific game properly. Yes, and proper clothing. ये ना हो कि गर्मी हो and you're wearing बहुत सारे clothes, है ना, so warm clothes नहीं होने चाहिए. So you need to have that proper environmental के हिसाब से. अगर ज़्यादा ठंड है तो नॉर्मल उस हिसाब से क्लोथ्स पहनिए. इफ़ यू नो दैट इट इज़ वार्म, सो यू नीड टू हैव दैट नॉर्मल क्लोथ्स एंड ड्राई फिट क्लोथ्स डेफिनेटली, बिकॉज वो दैट कैन हैम्पर योर गेम. जस्ट टू प्रिवेंट जो भी हीट है, सो वो फिर हीट क्रैम्प्स आएंगे आपको या हाइपरथर्मिया हो जाएगा, सो फेंट हो जाओगे. देयर इज़ नो पॉइंट जस्ट टेकिंग दैट अवे, है ना. और अगर कोल्ड है ज़्यादा से एनवायरमेंटल में, तो उसमें हाइपोथर्मिया और फ्रॉस्ट बाइट होने के बहुत सारे चांसेस है. इसमें आपने आई वुड ऑल्सो टेल यू अबाउट एक कोल्ड पैक. आई हैव इट हियर. सो कोल्ड पैक बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, कोल्ड पैक. ठीक है, सो दिस इज़ काइंड ऑफ कोल्ड पैक. आई एम शोइंग इट टू बिकॉज मेरे पास बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं जिन्होंने कोल्ड पैक देखा ही नहीं होता. सो कोल्ड पैक इज सच अ थिंग जो आप नॉर्मली फ्रीज़र में डाल दो एंड देन यू कैन जस्ट यूज़ इट एनी टाइम यू वांट इट. अगर किसी के पास कोल्ड पैक नहीं है, दिस इज़ व्हेन कोई माइनर इंजरी हो गई या एक्यूट इंजरी हो गई. सो व्हेन ऐसा कुछ सिचुएशन आपके सामने आती है, सो मेक श्योर से इफ़ यू डोंट हैव दिस पैक, देन यू कैन टेक एक नॉर्मल बैग ले लिया, पॉलीथीन बैग ले लिया, उसमें अपनी थोड़ी सी आइस डाल दी और वो स्पेसिफिक पार्ट पे लगा लिया, या एक कपड़ा ले लिया उसको लगा दिया. सो दिस वर द प्लेयर्स जो नहीं, कई प्लेयर्स हमारे पास ऐसे हैं, दे कांट अफोर्ड इट, दे कांट अफोर्ड प्रॉपर इक्विपमेंट्स. मेरे को अभी किसी ने क्वेश्चन भी एक पुटअप किया है कि मैम हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है और हम लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते. सो उसको कैसे कट डाउन कैसे करना है. सो उस चीज़ के लिए एक ये छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर आपके पास बर्फ़ नहीं है, कहीं फ्रिज में बर्फ़ तो होती है, तो उसको जमा लीजिए, नहीं तो कटोरी में जमा लीजिए. उसको जमा के आप एक बैग में डाल के एंड देन यू कैन अप्लाई इट. एंड उसको अगर आप अप्लाई करते हो, सो इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन. सो दिस इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द प्लेयर्स. सो इफ़ यू कम ओवर टू प्रिवेंशंस, appropriate training, I'm very well specifying it because आपकी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके रेस्ट्स इन बिटवीन द कॉम्पिटिशन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको इंडिविजुअल प्लेयर को इंडिविजुअल स्किल ट्रेनिंग देनी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो यू नीड टू मेक श्योर कि उनको प्रॉपर पावर, प्रॉपर स्ट्रेंथ, प्रॉपर जो भी उनकी फूड हैबिट्स हैं, टॉलरेंस है, उसके हिसाब से ट्रेनिंग देनी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये नहीं है कि हम लोग जो से स्प्रिंटर है तो हम उसको मैराथन ही करवाए जा रहे हैं. नो, देयर इज़ नो पॉइंट. हम लोग को स्प्रिंट के लिए उसको प्रिपेयर करना है, मैराथन्स के लिए उनको प्रिपेयर करना है, उनका एंड्योरेंस इंक्रीज़ करना है, उनकी पावर इंक्रीज़ करनी है, उनको ज़्यादा ब्रीथ करना है, उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हमें ज़्यादा करानी है. स्प्रिंट्स को ऑब्वियसली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज सबको करनी है, बट इट डिपेंड्स कि हम कितने किसको क्या करवाना है. सो द कोचेज, द टीचर्स नीड टू नो दैट. और प्लस द प्लेयर्स ऑब्वियसली अगर उनको पता होएगा तो वो जल्दी कैचअप करेंगे, है ना. अब इफ़ आई टॉक अबाउट साइकोलॉजी ऑफ द पेशेंट, ऑफ द प्लेयर, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब अगर लॉस ऑफ कंसंट्रेशन होएगी और उन्होंने एक स्प्रिंट किया, सो उनको कोई भी इंजरी हो रही है तो दे हैव लेस टाइम टू रिएक्ट. सो इफ़ दे हैव लेस टाइम टू रिएक्ट तो इंजरी है, कुछ भी नहीं कर सकते आप. तो आपका ब्रेन शुड बी प्रिपेयर्ड, साइकोलॉजिकली यू शुड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड. एंड वन मोर थिंग, नेवर सेलिब्रेट योर विनिंग. डोंट एवर सेलिब्रेट योर, डोंट गिव मोर एक्साइटमेंट कि ओ अब तो मैं जीतने वाला हूँ, अब तो मुझे पता है ये स्प्रिंट तो मैंने बस 2-3 सेकंड में जीत लिया. नो, यू हैव टू मेक श्योर कि पीछे से कोई आ रहा है और अभी आके उसको कवर अप कर जाएगा, बिकॉज इट इज़ मैटर ऑफ टाइम, इट इज़ मैटर ऑफ सेकेंड्स. यू डोंट इवन गेट टू नो. जितनी देर में आप वो सोचते हो उतनी देर में ही somebody comes over and takes it over. So you complete the game and then अपनी excitement show कीजिए. Don't show your excitement before finishing up the game. This is very important. This is very important for the from the psychology point of view. Yes, and tense. Don't be tensed before a game.
आई एम श्योर सबको होता है कि अब मुझे कोई गेम खेलनी है, आई एम अ बिट टेंस, बट उससे क्या होएगा कि आप प्रॉपर वार्म अप नहीं करोगे. इफ़ यू वोंट वार्म अप, फिर इंजरी के चांसेस अगेन हो जाते हैं. सो यू मेक श्योर दैट यू वार्म अप प्रॉपरली, यू आर नॉट टेंस्ड, एंड आपका माइंड इज कूल. ओके, अब मैंने खेलना है, मेरे को ये गेम प्ले करनी है, एंड आई हैव टू बी वेरी specific about what I'm doing, and I have to focus on one thing, that is my game. मैं उसके अलावा और किसी पे फोकस नहीं कर रहा till then. उसके बाद ठीक है, then when you are done with it, आपको पता है अब आपकी शायद कोई इंजरी थी या हो गई थी during the game, तो उसको आप later take it seriously and then come over to and go to the right person, to the right professional. अपना सही से फिजियो के पास जाइए, या अगर आपको लगता है कि किसी और मे बी इट्स अ मेजर इंजरी, सो यू नीड टू गो टू द डॉक्टर, टू द मेडिसिन स्पेशलिस्ट, सो उसके पास जा सकते हैं. बट देन गो टू द राइट पर्सन विद द राइट, सो आपका कोच वुड गाइड यू, द कोचेज वुड गाइड यू बेटर. सो उस चीज़ को आप ध्यान रखिए, एंड प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डू इट. Then we have nutrition. Definitely go for your proper calciums, your phosphorus, क्योंकि ये bone metabolism को alter करते हैं, और अगर नहीं होगा बॉडी में प्रॉपर तो इंजरी होएगी ही होगी. आपका अगर लेस इनटेक ऑफ प्रोटीन होता है तो ब्रेक डाउन ऑफ स्केलेटल मसल है. सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू टेक प्रॉपर प्रोटीन्स, प्रॉपर कैल्शियम, फॉस्फरस, और भी अपना प्रॉपर फूड, प्रॉपर सब कुछ चाहिए. प्रॉपर हाइड्रेशन चाहिए, पानी भी पीना उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लड फ्लो नहीं होएगा तो आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा. ब्लड फ्लो प्रॉपर होएगा आपकी बॉडी में, सो इट्स गोइंग ऑल ओवर द बॉडी एंड द रिस्पॉन्स इज दैट क्विक. स्टिमुलस मिलेगा आपकी बॉडी को. सो यू हैव टू बी वेरी, यू नीड टू इंश्योर अबाउट एवरीथिंग, एवरी पॉइंट, दैट ओके मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं अगर मुझे गेम खेलनी है तो मुझे सीरियसली खेलनी है, अगर मुझे इंजरी हो रही है तो मुझे उसको भी सीरियसली लेना है, अगर मैं कुछ खा रहा हूँ मुझे सीरियसली खाना है. इट्स नहीं कि मैं ओवरवेट हो रहा हूँ एंड देन यू नो एंड एंडिंग अप इन ओबेसिटी. There is no point. There is no point playing. अगर हम प्रॉपर फूड नहीं ले रहे हैं तो इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. सो यू मेक श्योर आप इंजरी नहीं होने दीजिए अपने आप को. एक है एथलीट्स मैनेजमेंट सिस्टम, AMS कहते हैं. So it helps in improving the health and performance of all the of the player, the outcomes increase करने के लिए. So इस चीज़ के लिए many of the coaches can guide their players, और it is a very good thing. अभी बहुत सारी institutes हैं जो players को तभी enter करने देते हैं जब उनकी ये वाली टेस्टिंग होती है. So इसमें स्पेसिफिकली पता चल जाता है कि ये प्लेयर इज़ मेड फॉर बैडमिंटन, कि मैं इसको ऐसी ट्रेनिंग दे जा रहा हूँ फॉर ईयर्स. या कोई प्लेयर से स्प्रिंटर है तो वो स्प्रिंट कर पाएगा, इसके मसल फाइबर्स वैसे हैं या नहीं है, कि वो बस मैं ऐसी ट्रेनिंग दे जा रहा हूँ फॉर ईयर्स एंड देन फाइनली आई एंड अप लाइक कि यार ये तो मैंने क्या किया, इसको इतने साल इस पे वेस्ट कर दिया है ना. सो नथिंग लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट, है ना. सो मेक श्योर अगर कोई करवा सकता है सो प्लीज़ गो फॉर दिस टेस्ट बिफोर कर सकते हो आप एनी ऑफ द गेम. मैं बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट प्लान नहीं डिस्कस कर रही हूँ, बिकॉज अगेन आई विल टेल यू मैनेजमेंट हैज़ बीन डिस्कस्ड बाय डॉक्टर साहब लास्ट टाइम. सो अभी के लिए प्राइस मुझे किसी ने पूछा था, सो दैट इज़ एन आंसर टू दैट पर्सन कि प्राइस के बारे में आई विल टेल यू दैट इज़ अ मैनेजमेंट इफ़ इंजरी हैपन्स. ठीक है, सो प्रोटेक्ट द इंजर्ड पर्सन, दैट इज़ प्राइस. सो PRICE इज़ प्राइस. एंड पहले राइस करते थे, बट सबसे पहले इज़ प्रोटेक्शन. अगर हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे पेशेंट को या प्लेयर को तो देयर इज़ नो पॉइंट. ठीक है, अगर हम उसके ऊपर सारे आ जाएंगे, चढ़ जाएंगे, ओ क्या लग गया, नो देयर इज़ नथिंग लाइक दैट. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू गिव प्रॉपर, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन आए, उसको यू जस्ट लीव दैट पर्सन फॉर अ व्हाइल एंड डोंट बी ओवर क्राउडेड ऑन दैट पर्सन. ठीक है, और अगर कोई स्प्लिंट मिल जाता है या स्ट्रेचर मिल जाता है, सो जस्ट टेक दैट पर्सन दैट. अगर कुछ मेजर इंजरी है तो स्ट्रेचर पे जाना पड़ेगा, अगर नहीं है तो जस्ट उसको असाइड बिठा दीजिए और उसको कर दीजिए. आई हैव अ फ्यू थिंग्स टू शो यू. यस, अगर आपकी से हैंड पे इंजरी हो जाए, से किसी ने बॉक्सेस फ्रैक्चर भी पूछा था मुझे,
सो अगर कोई इंजरी ऐसी है, अगर आप उसको न्यूज़पेपर से सपोर्ट कर सकते हो, जस्ट सपोर्टेड विद न्यूज़पेपर, इट्स अ 5th मेटाकार्पल की इंजरी, ठीक है. सो आई विल एक्सप्लेन सर. प्राइस रेस्ट मैं सारे उस पर आऊँगी, मैं अनु जोशी जी, आई विल कम ओवर, मैं उस पर आ रही हूँ, प्राइस पूरा एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको, ठीक है. आई हैव मेरे पास है अभी 10-15 मिनट, सो आई कैन टेक ऑल योर क्वेश्चंस. एंड एक्चुअली मैं क्वेश्चन से ही आंसर्स पहले ही दे रही हूँ. मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव बीन कवर्ड एंड अभी मैं बहुत सारी चीज़ें कवर कर दूँगी उस टाइम पे, ठीक है जी अनु जी. राइट. सो प्रोटेक्ट करना है. अगर हमारे पास गेम में कोई फिजियोथेरेपिस्ट है, ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. इन केस यू डोंट हैव अ फिजियो, सो अगर आपको पता है आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, एक स्प्लिंट नहीं देने के लिए कुछ नहीं है, जस्ट टेक अ न्यूज़पेपर एंड जस्ट रोल इट. इधर एक साइड रख दो न्यूज़पेपर, एक साइड इधर रख दो. इट कुड बी एनी पार्ट ऑफ द बॉडी. मैं हाथ इसलिए बता रही हूँ, इट इज़ कन्वीनियंट फॉर मी टू शो. सो इफ़ यू कीप योर न्यूज़पेपर दिस साइड एंड दिस साइड, जस्ट रैप इट ओवर, उसको बंद कर दीजिए, ठीक है. उसको बंद कर दिया, उसको टाई कर दिया, टाई कर दिया, एंड देन इट इज़ सपोर्टेड, ठीक है. और उसको देन यू कैन जस्ट डू इट ईजिली. उनको ले जाइए, देन फर्दर यू नो, जस्ट दिस इज़ फॉर जस्ट टू प्रिवेंट. उस टाइम के लिए आप जो प्रोटेक्ट कर रहे हो, प्रोटेक्शन के लिए ये है. अगर कुछ कई बारी हम लोग जैसे पेशेंट्स हैं, दे कांट अफोर्ड सम काइंड ऑफ जो भी स्प्लिंट्स आते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, तो हम लोग उनको बोलते हैं ये नॉर्मल स्मॉल आइस स्टिक्स होती हैं या आइसक्रीम स्टिक्स होती हैं. सो इसको जस्ट टाई इट अराउंड से, अगर मेरे को फिंगर का किसी फ्रैक्चर है, सो आई कैन जस्ट टाई इट लाइक दिस, इफ़ यू कैन सी इट, यस, आई कैन जस्ट टाई इट अराउंड. इसको मैं डॉक्टर्स टेप बोलते हैं, या किसी भी चीज़ से, कोई नॉर्मल टेप है या कुछ भी. अगर आपके पास टेप भी नहीं है तो आप थ्रेड एक प्रॉपर ले लो, उससे टाई कर दो. यू कैन टाई इट अराउंड दैट. ये नॉर्मल आइसक्रीम स्टिक्स, मैं ऐसी स्टिक्स कोई भी ले लो, कुछ भी स्टिक्स ले लो फॉर नाउ. ऑब्वियसली अगर आप डॉक्टर के पास पहुंच जाओगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, बट फॉर नाउ अगर आपके पास कुछ नहीं है, सो यू कैन यूज़ एनीथिंग वट एवर यू गॉट ऑन द स्पॉट, ठीक है. ये नहीं सोचना कि ओ अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, न्यूज़पेपर नहीं है. कोई पेपर होएगा, पेपर ले लो. मैंने न्यूज़पेपर बोल दिया, दैट डजंट मीन कि अब न्यूज़पेपर ही लेना है. नो, इट कुड बी एनीथिंग. यू जस्ट हैव टू बी क्लिक, you just have to click in your mind कि okay अब मैं इसमें I can use this, ठीक है. so protection के लिए we can use that. then rest. rest मेरे को किसी ने क्वेश्चन अभी पूछा था, अनु जी, rest. so राइस मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था, मेरे से स्किप हो गया यहाँ पे. so rest is very important. yes, protect के बाद हम लोग rest कर देंगे, PRICE. सो रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप रेस्ट नहीं करोगे, रेस्ट अब 2 टाइप का है, एक है बिटवीन द गेम वाला और एक है इंजरी के बाद वाला. सो यू मेक श्योर आप दोनों करो. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको दोनों का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम इंजरी के बाद वाला रेस्ट नहीं करेंगे तो इंजरी बढ़ेगी, और अगर हम गेम के बीच वाला रेस्ट नहीं करेंगे तो भी हमारी इंजरी होने के चांसेस हो जाते हैं. एंड आइस आई हैव एक्सप्लेन्ड यू वेरी वेल. मैंने आपको अपना एक आइस पैक भी दिखा दिया. अगर वो नहीं है तो आप नॉर्मल आइस बर्फ़ कहीं से भी ले लीजिए, वो ले दीजिए, और उसको हम कवर अप कर सकते हैं, किसी भी कपड़े से कर दीजिए या किसी पॉली बैग से कर दीजिए. एंड प्लीज़ मेक श्योर दैट उसी पॉइंट पे कंटिन्यूसली आइस पैक नहीं रखना, बिकॉज आइस से बर्न्स भी हो जाते हैं. वी कॉल इट अ क्रायोथेरेपी से बर्न्स हो जाते हैं. सो यू मेक श्योर दैट यू नॉट कीपिंग इट स्ट्रेट अवे. सो एकदम उससे रेडनेस रिदमिया सा हो जाता है, ठीक है. सो मेक श्योर अबाउट दैट एज वेल. इट इज़ नॉट कि आप सिर्फ हमारे बर्न्स किसी हॉट चीज़ से होते हैं, कोल्ड बर्न्स भी होते हैं, ठीक है. मेक श्योर अबाउट दैट. यस राजेश वर्मा जी, मैं प्राइस के बारे में ही डिस्कस कर रही हूँ. आई हैव टोल्ड अबाउट PRI एंड नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कंप्रेशन, एंड देन आई विल डिस्कस अबाउट कंप्रेशन. सो कंप्रेशन हम वही मैंने आपको पहले भी बताया था. वी कैन टेक अ क्रेप बैंडेज एंड देन क्रेप बैंडेज हम लोग लेके एक भी पार्ट को हम एलिवेट कर देते हैं, उसको टाई करते हैं, सो दैट हमारी लिम्फेटिक ड्रेनेज हो जाए, एंड देन यू नो इट कैन ड्रेन अप. दिस इज़ एक्चुअली गुड फॉर ड्रेनिंग ऑफ योर स्वेलिंग, एंड आपकी इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली कम होगी, है ना. सो उस चीज़ के लिए ध्यान रखिए. एंड एलिवेट डेफिनेटली एलिवेट, क्योंकि उससे ही ड्रेन अप ईजी हो जाएगा आपका. अलॉन्ग विद दैट अब ऑन द स्पॉट, ऑन द फील्ड बहुत सारी
इक्विपमेंट, बहुत सारी चीज़ें वी बीन यूजिंग. सो बीइंग अ फिजियो हम लोग वी यूजिंग कपिंग थेरेपी. आई कैन शो यू कपिंग थेरेपी एज वेल. अगर आप लोग ने, बहुत सारे लोगों ने देखा है, बहुत अच्छी चीज़ है. नहीं देखा तो हियर इट इज़. So these are the cups. It could be any kind of cups. So this also help आपकी treatment के लिए हम लोग use करते हैं. Then we have needling करते हैं हम. Then we have MFRs. We use MFRs. ये सारी techniques I'm sure all the physiotherapists know. Kabir Chaudhary ji is watching and he also knows about it. He's also a doctor. ठीक है. अगर बहुत ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रोस्टिमुलेशन, बट आई डोंट थिंक सो एनीबडी गिव्स इट ऑन द फील्ड. अगर बाद में चाहिए हो तो कोई दे देता है, बट नॉट इन द फील्ड नाउ डेज एटलीस्ट. पहले तो दे देते थे लेकिन अब नहीं देते. सो अभी हाइपर बैरिक चैम्बर्स भी आते हैं. दैट ऑल्सो इंक्रीजेज द ऑक्सीजन 3 times, बट अगेन वहाँ तक लेकर जाना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. ये नहीं है कि आप पहले ही पहुँच जाओ. ठीक है. सो पहले हमको सारा प्राइस करना पड़ेगा. प्राइस के बाद हम लोग को लगता है कि हम अब ठीक हैं तो फिर हम वहाँ पे कर सकते हैं. ठीक है. सो हियर मेरा जो है वो ऑलमोस्ट एंड है, बट आई विल टेक अ फ्यू क्वेश्चंस. सो केशव दुबे जी ने लिखा है मिनिस्कस इंजरी के लिए ग्लूकोसामीन एंड कोलेजन डाइट में ऐड करना चाहिए. हम लोग मोस्टली नी इंजरी में ग्लूकोसामीन ऐड कर देते हैं, कोलेजन्स ऐड करते हैं. सो येस वी कैन टेक इट. मैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट डेफिनेटली आपको एग्जांपल्स एक्सरसाइज के ज़्यादा दूंगी. आई वुड नॉट रिकमेंड मेडिसिन्स. मैं ज़्यादा आपको उस पर फोकस करूँगी. ठीक है. लेकिन येस टू इंक्रीज योर डाइट नेचुरली येस तो आपको चाहिए, बट येस ग्लूकोसामीन आपको और कोलेजन डाइट में ऐड करना पड़ेगा इफ़ यू हैव सम इंजरी. Next is somebody has asked me Sureshna Saini ji. Okay, Sureshna जी आपने मुझे पूछा है 30 minutes warm up and 20 minutes cool down. वीर सर है ना सर आपने जो बोला है. So it can't be specific मैम. अगर हम बोले 30 minutes पूरा तो उतने में वो थक जाएगा. So it depends upon individual. अगर प्लेयर को लगता है कि मैं 30 minutes कर सकता हूँ वार्म अप तो कर ले, लेकिन इतना कोई स्पेसिफिक नहीं है. 10 to 15 minutes इज़ ऑल्सो इनफ. और 15 minutes cool down. The same exercises which we did before during warm up can be done for cool down. अपना breathing पे ज़्यादा कंट्रोल कीजिए cool down पे. That is more important. And yes, you're right. Individual पे बेस करता है. I can't just say because there are no researches कि 30 minutes ही करना है या 50 minutes ही करना है. No, nothing like that. So yes, you're right, but for individuals. सुशील नैयर जी आप मुझे इंडिविजुअली भी पूछ सकते हैं. मैं आपको नंबर है मेरा. यू कैन टॉक टू मी बिकॉज आई कैन एक्सप्लेन द होल शोल्डर पेन हियर. इट कुड बी बट फॉर एनीथिंग. इट कुड बी अ टेंडन इंजरी के बड़ी सुपरस्पाइनल टेंडाइटिस हो जाता है. और मे बी आई हैव टू सी. मेरे को उसके टेस्ट करने पड़ेंगे एंड देन विल गेट टू नो. सो टेस्ट हमारे फिजिकल टेस्ट होते हैं. वी डोंट सजेस्ट द नॉर्मल दूसरे वाले टेस्ट. ओके. वाई वी शुड नॉट अप्लाई द आइस डायरेक्टली. सो जूही शर्मा जी अगर हम डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे आइस को हो सकता है कि उसको वहाँ पर रिदमिया हो जाए और उससे बर्न भी हो जाते हैं जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था. सो इसलिए हम डायरेक्ट नहीं अप्लाई करना चाहते. बिकॉज जूडो जी नहीं जी हमें एकदम गर्म से नहीं करना चाहिए. वेजोडाइलेशन होती है हम लोग को भी. नीड टू मेक श्योर दैट एक्यूट इंजरी में हम बिल्कुल आइस थेरेपी ही करेंगे. सो उधम सिंह जी अगर बास्केटबॉल प्लेयर हो आप और व्हाट थेरेपी वी शुड बी उस आपको फ्रोजन शोल्डर बास्केटबॉल मेरे को थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा है कि फ्रोजन शोल्डर है. इट कुड बी सम अदर इंजरी. सो अगेन आई वुड से कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है यू कैन टेक अ पर्सनल सजेशन एंड पर्सनल सेशन ले सकते हैं. सो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी इंजरी है क्या, किस चीज़ की इंजरी है. वी नीड टू नो दैट फर्स्ट है ना. क्योंकि फ्रोजन शोल्डर एक बास्केटबॉल प्लेयर में मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया. आई डोंट थिंक सो कि किसी को होती हो. आई हैव टू आई कैन जस्ट सिंपली से कि हो गई
frozen shoulder. It could be anything else as well, है ना. So we need to know, we need to check all the tests. We can't just say that way. ठीक है. I've taken many questions. बाकी questions हम लोग और भी ले सकते हैं, but personal sessions में भी ले सकते हैं. ठीक है. And I guess it is more than 2 o'clock. I've taken my session and I hope you all liked it. अगर आपको और कुछ भी doubts हैं, you can come over and contact me personally. Pefi has all my information. They shared it as well. So thank you so much. Thanks for being so patient. Thank you. And see you next time with some other topic. Right? Okay. Thank you so much. Bye bye.